नमस्कार, मैं सोनम। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज की बुलेटिन की तरफ। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएलके नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया। यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी उपलब्धि का जश्न मनाने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी जिलों में 1 सितंबर को दुर्गा पूजा कार्निवल के आयोजन का निर्देश दिया है। इसी क्रम में गुरुवार को आसनसोल के पोलो मैदान से भी दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसनसोल उत्तर के विधायक तथा राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक, नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस अरुण प्रसाद, सभी एमएमआईसी आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष उत्पल सिन्हा सहित तमाम पार्षद गण और स्थानीय बासिंदे मौजूद थे। यह रंगारंग शोभा यात्रा पोलो मैदान से शुरू होकर भगत सिंह मोड़, कोट मोड़ होते हुए बीएनआर मोड़ में रविंद्रनाथ में जाके खत्म हुई। আমাদের দুর্গা পূজা ইউনেস্কোতে হেরিটেজ স্থান পেয়েছে, তার জন্য আজ সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী প্রতিটি জেলাতে আজকে প্রতিটি মানুষে দুর্গা পূজার কার্নিভ্যালের মাধ্যমে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও আমাদের পোলো গ্রাউন্ড থেকে এই শোভাযাত্রাটা চালু হবে আর কিছুক্ষণ পরে। তো সকলকে আমন্ত্রণ রইল, সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, পুজোতে খুব ভালো করে আনন্দ করুন। ভারতবর্ষের দুর্গাপুজো কবে তৈরি হয়েছিল, কে করেছিল, কবে সৃষ্টি হয়েছিল এবং সনাতন ধর্ম কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যত রিসার্চ করা যাবে তত কিন্তু নতুন নতুন সংস্কার তৈরি হবে এবং সেই সংস্কার কিন্তু ভারতবর্ষকে নতুন দিশা দেখাবে। আমরা যদি সত্যযুগে বা দাপর যুগের কথা চিন্তা করি, আমরা কিন্তু সেই সময় পুষ্পক রথের কথা চিন্তা করেছিলাম, এখন কিন্তু আমরা রকেট লঞ্চারের কথা ভাবছি। সেই জিনিসটাই কিন্তু নতুন রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। তো সেই জন্য এই হিন্দু সনাতন ধর্মে যে আজকে কার্নিভাল যেটা বের করছেন রাজ্য সরকারের মধ্যেখান দিয়ে এবং বিভিন্ন মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে, যারা আসবেন তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা থাকবে এবং যাদের উদ্যোগ নিয়ে আমরা এই যে অনুষ্ঠানটাকে সফল করব তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল, যাতে আগামী দিনে তারা এইরকমভাবে এই সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত সংস্কারপূর্ণ কৃতিত্বটা আছে সেটা মানুষের কাছে জাহির করে তুলে ধরা। কারণ হিন্দু ধর্ম একটা এমন ধর্ম যে ধর্মের মধ্যেখান দিয়ে মানুষকে নতুন নতুন সংস্কার শেখায়, নতুন নতুন ভাবনা শেখায়। তো আমি সেই জন্যই বলি সব ধর্মীয় মানুষকে সমানভাবে ধর্ম পালন করা উচিত, কারণ ধর্মই একমাত্র জিনিস যে মনকে পবিত্র করে এবং নতুন নতুন ভাবনা শেখায়। মন পবিত্র হলেই কিন্তু নতুন সমাজ তৈরি হবে। তো আজকের এই আহ্বানে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকেই আমরা আহ্বান করছি, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ আসুক এবং একটা নতুন নজির সৃষ্টি করুক আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। এই যে ইউনেস্কো যে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, এটা কতটা উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেন? এটা পৃথিবীর মধ্যে একটা সবথেকে গ্রহণযোগ্য জিনিস। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের যে একটা দুর্গাপুজো সেটা যে তুলে ধরতে পেরেছে বা আমরা যে তুলে ধরাতে পেরেছি ওনাদের, আমরা যে আমাদের সংস্কারটা পাঠিয়েছি, সেটাই আমাদের কাছে সবথেকে বড় গৌরবের বিষয়। আজকে যে কার্নিভালটা বেরোবে আর এতে মুখ্য বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে কী থাকবে? দেখি আসলে মানুষের উৎসাহ, মানুষের আন্তরিকতা, মানুষের পবিত্রতা। ইউনেস্কো থেকে যে দুর্গাপুজো যে কালচারাল হেরিটেজ আছে সেটার একটা কালচারাল হেরিটেজ হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, সেটার ফলস্বরূপ আমরা আজকে এই র্যালিটা করা হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এই র্যালিটা আমরা আজকে করেছিলাম। পোলো গ্রাউন্ড থেকে রবীন্দ্র ভবন পর্যন্ত র্যালিটা করা হয়েছে। आसनसोल दक्षिण थाना इलाके के दोमहानी पानी टंकी इलाके में केंद्रीय विद्यालय के
लापता शिक्षक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने जब गुरुवार सुबह फंदे से लटका शव देखा तो उनके होश पाख्ता हो गए। सूचना पाकर पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। मृतक की पहचान केंद्रीय माध्यमिक विभाग के शिक्षक अमिताभ नंद के रूप में हुई। वह सोमवार शाम से लापता थे। 28 वर्षीय अमिताभ नंद आसनसोल केंद्रीय विद्यालय के पास दोमहानी रेल कॉलोनी में रहते थे। इस संदर्भ में मंगलवार आसनसोल दक्षिण थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मूल रूप से उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रहने वाले अमिताभ केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त थे। पुलिस मोबाइल ट्रैकिंग के माध्यम से लापता शिक्षक की पता लगाने में जुटी हुई थी, लेकिन शिक्षक का फोन बंद होने से उनकी तलाश में परेशानी हो रही थी। वहीं शिक्षक ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है, इसे लेकर संशय बना हुआ है। पुलिस फिलहाल शव के पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। वहीं परिजनों में मौत से बहुत ही दुखी हैं। यहाँ पर मैं 21 नंबर वार्ड की काउंसिलर आशा प्रसाद। यहाँ पर हमको खबर गया सुबह 7 बजे कि यहाँ कोई सुसाइड किया है। इसकी वजह से मैं थाना को इन्फॉर्मेशन की और उसके बाद आकर देखी तो वास्तव में यहाँ आदमी जो है, यहाँ का एक रेल स्टाफ है, वही बताया कि यहाँ पर एक स्कूल टीचर का जो है बॉडी टांगा हुआ है। मैडम आइए आकर हम आज आसनसोल के बीबी कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर वक्ताओं ने विचार विमर्श किया। यहाँ काजी नजरुल विश्वविद्यालय से आए बंगला के प्रोफेसर ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा और भी कई वक्ताओं ने आज के सेमिनार में हिस्सा लिया। इस विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। इस संदर्भ में आसनसोल टाइम्स से बात करते हुए बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल अमिताभ बसु ने ऐसे सेमिनार के आयोजन की महत्ता पर जोर दिया और कहा कि आने वाले समय में इस तरह के आयोजन किए जाते रहेंगे। आज ये सेमिनार हुआ उसके बारे में सेमिनार तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ था और ये मैंने काजी नजरुल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। मेरा जो टॉक था यहाँ आज उसका टाइटल था कॉम्बाइंड मेथड्स इन लिटरेरी रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटीज़। तो लिटरेरी रिसर्च के बारे में बात किया गया तो काफ़ी सवाल थे जो दर्शकों था उनके तरफ से बहुत सारे सवाल थे और बहुत दिन बाद ऑफलाइन सेमिनार भी शुरू हुआ है अभी तो सब लेकर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये आज जो टॉपिक आपने कहा हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में मैं नहीं कहा, मैंने लिटरेरी रिसर्च में कंबाइंड मेथडोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में कहा। तो इसको लेकर आपने आज जो सेमिनार में कहा और जो सवाल आपके पास आए तो आपको क्या लगा कि कितने जागरूक हैं लोग इस सब्जेक्ट के? देखिए लिटरेरी रिसर्च जो है ये तो आजकल फंडिंग के अगर आप फंडिंग के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि लिटरेरी रिसर्च में फंडिंग ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है वो कि जो सब ये लेकर एक्साइटेड हो गए है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये पढ़ने का, इसके बारे में रिसर्च करने का हाँ उससे जुड़ने का काफ़ी है लोग में काफ़ी लोग परेशान कर रहे हैं और ये जोड़ना चाहिए। तो ये जुड़ने का तरीका क्या है इसके बारे में मैंने कहा आज। मैं अभिजीत साधु खां, मैं काजी नजरुल यूनिवर्सिटी बांग्ला डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है उस चीज़ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और ये जो सर ने जो बताया तो ये लिटरेरी रिसर्च देन सोशल साइंस रिसर्च में किस तरीके से रिसर्च किया जाता है, मतलब तो तरीका क्या है, उस तरीके के बारे में बात किया जा रहा है। नॉर्मली जो होते हैं सोशल साइंस में हम किताब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, आर्काइव जाते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों से बातचीत भी करना चाहिए, जो रिसर्च में सोशल साइंस रिसर्च में इतना होता नहीं है। तो वो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि पहले ऐसा हो चुका है लेकिन नए तरीके से फिर से वो करना चाहिए, जिसको एथनोग्राफी कहा जाता है, ओरल हिस्ट्री कहा जाता है। तो उस तरीके से कैसे हम रिसर्च कर सकते
सकते हैं। इस अगर वैसे हम रिसर्च करें तो हम ग्रास रूट लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो समाज में तो प्रॉब्लम ठीक सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता है, सामाजिक भी होता है, इकोनॉमिक समस्या भी बहुत सारा होता है। तो ये तरीका अपनाने से ये सब समस्या का सामना हम कर पाएंगे। तो उनके रिसर्च टॉक में यही इस सब के बारे में हम बातचीत हुआ। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर संदीप चैटर्जी, मैं यहाँ पे इतिहास पढ़ाता हूँ बीबी कॉलेज में। আমাদের কলেজের আজকে রিসার্চ এন্ড डेवलपमेंट सेल जो हम लोग ओपन हुआ है उसका आज का सेमिनार चल रहा है। इसका पहले भी हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का तरफ से सेमिनार किया था। उस सेमिनार का टॉपिक था रिसर्च मेथोडोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ऊपर जो सेमिनार हुआ है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का जो इंटेलेक्चुअल जो ब्रेन और बुद्धि को यूज़ करके जो चीज़ हम लोग बनाता है, जो क्रिएटिविटी की तरफ से होता है, उसका अगर कोई कॉपी कर लेगा तो जो मेहनत से जो रिसर्च के बाद उसको बनाएगा, उसका प्रोटेक्शन अगर नहीं होगा तो उसका डुप्लीकेट इजीली हो जाएगा। मान लीजिए आप एक बहुत सुंदर डिज़ाइन बना है कोई किसी का, तो उसका मार्केट में आएगा तो दूसरा दिन ही उसका कॉपी निकल जाएगा। तो इसलिए जो डिज़ाइन हुआ है, जो इंटेलिजेंट यूज़ करके, जो रिसर्च करके जिसने जो बनाया है उसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो यही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का बात है। तो ऐसा ही हम लोग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है, अभी हम लोगों को जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हम लोगों को दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम लोग जो एकेडमिक एंड रिसर्च दोनों का जो क्वालिटी है, क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है। अभी हम लोगों का गवर्नमेंट ने बहुत सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन कर रहा है, इसमें बहुत अच्छा हो रहा है। सब स्टूडेंट का पढ़ाई का एक्सेस मिल रहा है, सुजग मिल रहा है। ज़्यादा बाहर जाके पहले एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता था एक कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी हम लोग सब नज़दीकी मिल रहा है, मगर कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन हुआ है, बहुत अच्छा बात है। इसके साथ साथ ही हम लोगों का क्वालिटी, हायर एजुकेशन में जो क्वालिटी है, इसको क्वालिटी की मेंटेन करना पड़ेगा। अभी कोरोना का चलते हम लोग देखा है जो स्टूडेंट लोग जो उसका पढ़ाई ठीक नहीं हुआ है, जो यहाँ इसमें क्वालिटी का साथ बहुत कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो हम लोगों को क्वांटिटी भी एक्सपांसन का साथ साथ ही क्वालिटी को मेंटेन करना भी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो इसके चलते हुए हम लोग ये रिसर्च और डेवलपमेंट सेल है, जो हम लोगों का कॉलेज में रिसर्च का बढ़ावा देने के लिए, जो सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए, उस तरह का रिसर्च करने के लिए। और हम लोगों का कॉलेज का जब रिसर्च के लिए सबसे ज़रूरी है फंडिंग, बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों का कॉलेज का उतना फंड नहीं है, तो हम लोग यही कर रहे हैं जो इंडस्ट्री के साथ बड़ा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन लोगों के साथ कोलाबोरेशन करके, बाहर से लोगों को ला के, उन लोगों को साथ से ओपिनियन लेके कोलाबोरेशन करके हम लोगों का कॉलेज को जो फैकल्टी मेंबर है उन लोगों को रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए हम लोगों को रिसर्च डेवलपमेंट सेल खोला है। आज के इस सेमिनार में कौन-कौन शामिल है? आज का सेमिनार में हम लोगों का काजी नजरुल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अभिजीत साधु का उन्होंने आया है, और हम लोगों का रिसर्च डेवलपमेंट सेल का जो मेंबर्स हैं, टीचर लोग हैं जो रिसर्च में अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोग भी है, हम लोगों सब टीचर लोग भी है। और हम लोगों को 9 सितंबर फिर दूसरा एक रिसर्च डेवलपमेंट सेल सेमिनार होगा। वहाँ पे जो मैंने बताया जो फंड का तो एक प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारा ओपन सोर्स भी है, जो पैसा दे के खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ओपन सोर्स का बारे में कहाँ से रिसर्च के लिए मटेरियल मिलेगा, सोर्स मिलेगा, उसका तरफ से जो एक्सपर्ट है वो भी आएंगे। और इसके बाद और एक्सपर्ट आएंगे जो हम लोगों को रिसर्च फंडिंग देने के लिए बहुत सारा एजेंसी है, जैसे DBT, DST, साइंस एंड टेक डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, साइंस रिसर्च जो मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत सारा एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज है, इंटरनेशनल एजेंसी है, WHO है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों के पास से भी प्रोजेक्ट सबमिट करने का, अगर उन लोग देखेगा ये प्रोजेक्ट में वायबिलिटी है, इस प्रोजेक्ट करने के बाद, ये रिसर्च करने के बाद यहाँ पे जो काम होगा, जो सोसाइटी को अपग्रेडेशन करेगा, सोसाइटी का लाभ होगा, तो वो लोग उसको फंडिंग करते हैं। तो हम लोगों को फैकल्टी के लेंगे यही डिस्कस करने कैसे फंड रेज कर सकता है, कैसे नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं, उसके लिए ही ये सेमिनार किया जा रहा है। पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञान भारती हाई स्कूल रानीगंज में OC ट्रैफिक रानीगंज चित्तोष मंडल स्कूल के प्रिंसिपल अमित साव अन्य शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति में मिशन को सफल बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है।
कुल 45 पौधे रोपे गए हैं और उनको नुकसान से बचने के लिए उन पौधों के लिए उचित बाड़ लगाए गए। वृक्षारोपण के बाद उन स्कूली छात्रों के बीच एक SDSL जागरूकता कार्यक्रम भी किया गया। उन्हें विभिन्न यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया और यातायात संकेत और गति विश्लेषण दिखाया गया। उनको अपने परिवार के सदस्यों और कॉलोनी के लोगों के लिए भी सभी तक यह संदेश फैलाने के लिए कहा गया। আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা সকলে ভালো থাকো সকলে ট্রাফিক নিয়ম মেনে রাস্তা পারাপার করতে চলাচল করো স্কুলে আসার থাকলে স্কুলে আসো আর যে মেসেজ আমাদের দিয়ে গেল যে বাড়িতে যে সমস্ত ব্যক্তি আসে কাকা হতে পারে বাবা হতে পারে মা হতে में ECL के महावीर कोलियरी इलाके के न्यू कॉलोनी में CISF और ECL के सुरक्षा कर्मियों द्वारा ECL की जमीन पर रहे लोगों को हटाने का नोटिस दिया गया। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी पसर गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय 37 नंबर वार्ड के पार्षद और रानीगंज टाउन TMC अध्यक्ष रुपेश यादव मौके पर पहुंच गए और उन्होंने वहां रहने वाले लोगों को आश्वस्त किया कि वह उनके साथ हैं और जब तक इस ECL द्वारा उनका पुनर्वास नहीं दिया जाता उनको वहां से कोई ताकत नहीं हटा सकती। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए रुपेश यादव ने कहा कि आज CISF और ECL के सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचे थे और यहां रह रहे लोगों को हटाने के लिए 6 दिन का नोटिस दिया। रुपेश यादव ने कहा कि यह कोई मजाक नहीं है कि लोगों को इस तरह से बिना पुनर्वास के हटाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि 2020 तक भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोगों के सर पर छत होगा, लेकिन इन लोगों को घर मुहैया नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक इन लोगों को पुनर्वास नहीं दिया जाता यहाँ से किसी को हटाने नहीं दिया जाएगा। रुपेश यादव ने कहा कि यह बंगाल है और यहाँ भाजपा शासित प्रदेशों की तरह बुलडोजर चलाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ गरीब जरूरतमंदों लोगों के साथ खुद ममता बनर्जी खड़ी हैं। आज ECL के तरफ से ECL सिक्योरिटी और CISF के लोग अचानक से आकर के यहाँ 37 नंबर वार्ड के गरीब गुरबों को डराने और धमकाने का काम शुरू कर दिया। किसे यहाँ से छोड़कर निकल जाओ, भाग जाओ, हट जाओ। फिर भारत का नागरिक है, भारत का जमीन पे है, अब अकेले दिल्ली के सरकार ही नागरिक है क्या? जो मन में आया उठाया सब सारा चल दिया, चलो भाग जाओ। पहले इनका व्यवस्था कीजिए, उसके बाद ये लोग अपने जाएगा। ये लोग भी यहाँ का रहने वाला, पहले इसका व्यवस्था होना चाहिए। कहाँ रहेगा इनका घर? आप बोलते हैं 2020 तक हर परिवार के माथे पर छत होगा, आज भी सिर्फ बिना छत का है सब। तो पहले इसका व्यवस्था करना चाहिए, फिर CISF पर इसको भेजना चाहिए। इसीलिए वो लोग आए थे, उनका प्रतिवाद किए, वो लोग वापस गए। कर एक हाथी मोहल्ले में घुस गया और हंगामा करने लगा। घटना बांकुड़ा जिले के गंगा जल घाटी प्रखंड के केदुआडीह गांव की है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हाथियों का समूह से छूटा एक हाथी कल रात 1:30 बजे से 2 बजे के बीच मोहल्ले में घुस गया। उसे देखने के लिए लगातार हंगामा करने लगे लोग। गजराज को देखने के बाद भी ग्रामीणों ने असहाय होकर यह दृश्य देखा। हाथी ने कई दुकानों पर हमला किया और बिस्किट, तेल के टिन और आलू के पैकेट सहित कई दैनिकीय आवश्यक चीज़ों को नष्ट कर दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये जंगली हाथी साल भर उनके गांव पर हमला करते हैं, जिससे उन्हें हर रात डर के मारे रहना पड़ता है। वन विभाग द्वारा जंगली हाथियों को भगाने के लिए कई कदम उठाने के बावजूद गांवों पर हाथियों का हमला जारी है। हाथियों को भगाने के लिए विशेष कदम उठाने के लिए गुहार लगाई, अपने नुकसान के मुआवजे की मांग की। মানে হচ্ছে আপনার তখন রাত 1:30 বাজে হাতি এসছে তখন আমরা প্রথমে তো বুঝতে পারিনি। পাশের বাড়ি একজন ফোন করলো যে বৌদি তোমার বাড়িতে দোকান ভাঙছে, তুমি বেরোবে না। তাহলে এবারে দেখছি যে দোকানটা ভাঙছে। তারপরে আমার এখানে চাল ছিল, চালের বস্তা, আলু ছিল 2 বস্তা, তেলের টিন ছিল, তেলের টিনটা উল্টি দেয়, এখানে ঢেলে দিয়েছে আর কি তেলের 2 টিন। আর তারপরে আলু বস্তাগুলো বাইরে বের করে ছড়িয়ে দেয়। তারপরে আপনার যে বস্তা মুড়ি ছিল সেই 3 বস্তা মুড়িটা নষ্ট করে দেয়। হ্যাঁ, সব কিছু মানে তারপরে বিস্কুটের পেটি ছিল, সমস্ত কিছু নষ্ট করে দিয়েছে। হ্যাঁ, তারপরে আমি
চাইছি যে আমার যে এত ক্ষতি হলো তা আমার কিছু ক্ষতিপূরণ যেন কিছু সাহায্য করে সরকার আমাকে। হ্যাঁ, এই জন্যে তারপরে দেখুন আমরা তো আমার এই দোকানটুকু নিয়ে আমার চলে। আমার আর্থে এমনি আমার কোনো কিছু নাই যে আমার কোনো রোজগার আছে বা কিছু, দোকানটার উপরে ভরসাতেই আমি থাকি। কখন ঢুকেছিল হাতিটা আনুমানিক? রাত 1:30টা। কটা হাতি ছিল? একটি হাতি ছিল। তো প্রায়ই আমাদের গ্রামে আমাদের এখানে হাতি প্রায়ই ঢুকে। হ্যাঁ, তো আমরা গ্রামের লোক খুব ভয়েই আছি। হ্যাঁ, কারি হয়তো ঘরে করছে, জানলা ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে, কারি হয়তো ঘরের করে যে ঘর ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে, কারি হয়তো দোকান ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে, এরকম প্রায়ই ক্ষতি করে হাতিতে। কতটা আতঙ্কিত আছেন? আমরা অনেকটাই আতঙ্কিত, ভয়ে আছি আমরা। কি চাইছেন এখন? আমরা চাইছি যে কি চাইছেন এখন? আমরা চাইছি যে বন দপ্তর অফিস থেকে যে আমাদের যেখানে গ্রামে যে হাতিগুলো ঢুকছে, এই হাতিগুলো যেন ব্যবস্থা করা হয়, যেন অন্য জায়গাতে যেন হাতিগুলো নিয়ে যেয়ে ছেড়ে দিয়ে আসা হোক। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে সঞ্চিতা ব্যানার্जी। अभी तक आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास की खबरें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।